ठीक है, तो इसीलिए मॉनिटरी पॉलिसी को हम पूरा कवर कर रहे हैं। जो अपकमिंग एग्जाम में जा रहे हैं उनको भी क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक पार्ट से आएगा या फिर जो चेंज होगा उसी से आएगा। एंड वी आर होपफुल that this time he is going for hockey stance, and we will also understand what is this stance. And in internal class there is a PDF on monetary policy. Please don't read it now. Tomorrow with 100 plus MCQs, new monetary policy PDF will be uploaded with all these things which we are going to discuss here. तो व्हाट एमपीसी डिस्कस, जो एमपीसी का मीटिंग हुआ होता है उसमें डिस्कशन क्या हुआ है, किसके बारे में डिस्कस होता है? फर्स्ट द मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो. Prices and costs. Micro is related to individual, micro is small, so it is always related to individual. Okay, so and macro is big, it is related to the nation. ठीक है, ये पूरे नेशन का इकोनॉमी, जीडीपी, ये सब देखता है. प्राइसेस एंड कॉस्ट, दैट इज इन्फ्लेशन. डिमांड एंड आउटपुट, financial markets and liquidity condition, and the external environment. These are the main things on which the discussion takes place in a monetary policy committee. And where the monetary policy is injected to Indian system, Indian banking system, it is as per the section 45ZB of RBI Act. Very important for static point of view. Please stay connected. जितना लेट हुआ आप लोगों को ज्वाइन करने में, अभी now you will get 100 times more knowledge than you waited. Okay, जितना आपने इंतजार किया है, इंतजार का, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है. देखिए किस तरह का कंटेंट हम लाए हैं. ठीक है, इसको मैं आधे घंटे में खत्म करने वाला था, आपके लिए पूरा पढ़ाएंगे आज. MPC constituted by the central government by RBI Act 1934. The first meeting of MPC held in 2016. ठीक है, there is a and this committee decides the key policy rates including repo, reverse repo, MSF, liquidity adjustment facility, and now there is a new addition called SDF. Okay, SDF का full form क्या है बताइए कमेंट में. There is a 6-member monetary policy committee and the Reserve Banks of Monetary Policy Department, MPD, assists the monetary policy committee in forming the policy. Okay, and they take the CPI inflation as the parameter to discuss to formalize the rate on inflation. तो मेजरली इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इस्तेमाल किया जाता है. MPC is a combination of 3 members from RBI and 3 nominated from the central government, and RBI governor being the ex officio chairman of the MPC. What do we mean by ex officio? Being the virtue of in the chair. ठीक है, वो ऑफिस में होने के कारण से उनको कमिटी में लिया गया है. ठीक है, शक्तिकांत दास एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. एक्स ऑफिशियो मतलब as long as he is in the position of RBI governor, he is the chairman. So who is the chairman of the MPC? Not Shaktikant Das, not Mr. Shaktikant Das, but the RBI governor. If in the place of Mr. Shaktikant Das, you and me will be appointed as the RBI governor, we will be the chairperson. So he is called the ex officio chairman. Being in the virtue of the office, he is appointed as the chairman. Okay, Michael Devabrat Patra, one of the deputy governors of RBI, and Rajiv Ranjan, executive director of RBI. These are the fixed members appointed by RBI. These are from RBI, members from RBI, and these are nominated by Government of India. Asima Goyal, Sasank Vide, Jayant Verma. You can see them in the photographs. Clear? अभी ये मेंबर हैं, आपको आ सकता है एग्जाम में, who are nominated, who is not nominated. Okay, who among them is not a RBI in the RBI monetary policy. Okay, some facts about MPC. The setting of committee for the monetary policy is Urujit Patel committee. He was then the deputy governor. The members of MPC needs to observe a silent period of 7 days before and after the decision of utmost confidentiality. The meeting of MPC are held at least 4 times a year, specifically at least once every quarter. ठीक है, ये मिनिमम नंबर है, और आजकल बाई मंथली होता है, यानी कि 6 बार होता है मिनिमम. किसी भी हाल में 4 बार तो मीटिंग मैंडेटरी है ही है, बट टुडे नाउअडेज
It is a bi-monthly monetary policy committee, so it could be 6 times. Okay, in the year 2021 there are 7 meetings. There are 7 meetings because in the year 2020 there were 5 meetings due to COVID-19. Okay, so in 2021 there are 7 meetings. That compensated the earlier fault. Clear? तो एमपीसी से पहले क्या था, कोई पूछ ले सवाल. देयर वाज अ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी टैक व्हिच वाज डिसाइडिंग द की रेट्स फॉर रिजर्व फॉर द आरबीआई. क्लियर? मेंबर्स ऑफ द एमपीसी आर अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स. मैं एमसीक्यू में भी पूछने वाला हूं, ये सब चीज को ध्यान में रखिए. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहीं से बनता है. ओके, वेरी गुड. नाउ ऑल ऑफ यू फीलिंग हैप्पी? कंपेंसेटेड फॉर द डिले, कंपेंसेटेड फॉर द डिले क्लास. बहुत कुछ आगे हम एक्सप्लोर करेंगे, एफओएमसी के बारे में पढ़ेंगे. आर यू ऑल हैप्पी? तो एक बार लाइक कर लीजिए, थम्स अप कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड बाय आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी? गूगली 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 गूगली. किसने कहा डी? सीएम कैसे डी हुआ यहाँ पे? गूगली है, मुझे लगता है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए गूगली है. पीएसएल रेट कहाँ डिस्कस होता है? थोड़ी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस होता है. लास्ट टाइम पीएसएल कब चेंज हुआ है? लास्ट टाइम कब पीएसएल का रेट चेंज हुआ था, मतलब पीएसएल मॉडिफाइड हुआ था? अगर बहुत ज्यादा आप आरबीआई सर्कुलर जिस्ट का फैन है तो आपको पता होगा. हमारे आरबीआई सर्कुलर जिस्ट का एक खासियत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हेड ऑफिस से लेके बहुत ज्यादा लोग जो उनके इंटरनल प्रमोशन देते भी नहीं है, वो हमारे सर्कुलर को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल शब्दों में रहता है और हर कोई चीज एक ही जगह पे रहता है. ठीक है, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं छोटे मोटे, वो आरबीआई सर्कुलर जिस्ट ये शब्द का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने टैग में भी डाल देते हैं. एक टैग होता है यूट्यूब में डालने के लिए, उसमें भी डाल लेते हैं. क्यों? क्योंकि जिस्ट पॉपुलर है और हमने इसका आइडिया बनाया था कि नॉलेजिस्ट है तो क्लास का नाम आरबीआई सर्कुलर जिस्ट रहेगा. सो वी आर दिस मच पॉपुलर. एनीवे, पीएसएल रेट लास्ट रिवाइज हुआ था कब? जून 2020, सॉरी दिसंबर 2021 में. ठीक है, सॉरी इफ आई रिमेम्बर इट, अक्टूबर 2021 में लास्ट रिवाइज हुआ था, जिसमें 50 लाख स्टार्टअप के लिए एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्लीमेंट किया गया था. ठीक है, the context of RBI monetary policy, what does a dovish stance lead to? dovish stand क्या करता है? weakens the currency, strengthens the currency, constants the currency value and none of the above. अक्टूबर 2021, राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. आप लोग भी पूरा फैन है, मतलब पढ़ रहे हैं तो पूरा दिल से पढ़ रहे हैं. वैसे कभी ये सवाल नहीं आगे कि कब हुआ था, बट इतना भी अगर आप मार्क कर लेते हैं, देन यू आर ऑन द एज. नोबडी कैन डिफीट यू. अच्छा, जब डोविश होगा, करेंसी का वैल्यू क्या होगा? वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा. वेरी गुड, वेरी 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 गुड. और ये मजा आ जाता है, इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मजा आ जाता है. रिवर्स रेपो रेट इज रेट एट व्हिच बैंक्स लेंड टू आरबीआई, आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स, बैंक्स लेंड टू ईच अदर और आरबीआई लेंड्स टू द गवर्नमेंट. और आज के डेट में बिल्कुल ही पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिक्स्ड हो चुका है, बहुत कम हो चुका है. कितना परसेंटेज? 3.75. तो इसमें क्या होता है, ये फिक्स्ड रिवर्स रेपो में क्या होता है? कहानी क्या है? बैंक लेंड्स टू आरबीआई, बैंक लेंड्स टू आरबीआई. कुबेर को पैसे की थोड़ी जरूरत है. ठीक है, तो पॉपुलर है ही नहीं, राइट. Which of the following can be considered as a dovish signal in monetary policy? इसको हमने देखा है. dovish signal कब आएगा? डिक्रीज इन रेपो रेट. जब रेपो रेट डिक्रीज होगा तब आपको पता चल जाएगा कि डोविश स्टैंड ले चुका है आरबीआई. सॉरी, 3.35. यस, नॉट 3.75, इट इज 3.35 फिक्स्ड. यस, 3.35. ठीक है, 3.35 इतना कम है. अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, डिक्रीज इन रेपो रेट. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस? प्राइमरी फोकस ये तो बता दिया है, शायद रिपीट है. कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ओके, इन्फ्लेशन. एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट बाय आरबीआई लीड्स टू, रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज डिक्रीज होगा तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, नो चेंज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. होगा क्या?
होगा क्या? डिक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है। When was the first MPC established? First MPC established? First MPC 2016, 2016। बी किसने कहा? 2016। हाँ, येलो कलर में रेड कलर अच्छा रहेगा, इसको चेंज करेंगे। टाइम कहाँ मिलता है इतना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक के बाद एक एग्जाम। मैं बहुत सोच रहा हूँ चेंज करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, एनीवे चेंज कर देंगे नेक्स्ट टाइम से, इसको ध्यान में रख के चेंज कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस कलर ही तो चेंज करना है और क्या है। ठीक है, 2016 उर्जित पटेल जी, याद रखिए। एमपीसी किसमें है? सेक्शन का नाम बताइए। क्रेडिट मैनेजमेंट चल रहा है, क्रेडिट मैनेजमेंट का चल रहा है। आप टीम को मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, रिजोल्यूशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा। रिजोल्यूशन भी देखने का टाइम नहीं मिला, रिजोल्यूशन थोड़ा सा। 45 जेड बी आरबीआई एक्ट, वेरी गुड। 45 जेड बी आरबीआई एक्ट, वेरी गुड। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसडीएफ? एसडीएफ, एसडीएफ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो एसडीएफ में क्या होता है? अच्छा, उस एसडीएफ में क्या होता है? एसडीएफ इज इक्वल टू रेपो रेट एक्सेप्ट, if it is asked, SDF is equal to repo rate except on one condition, except on one condition. SDF is equal to repo rate except one condition. Fill the gap. अच्छा, who appoints the external members in MPC? Central government, central government. ठीक है। What is the term of external members? Term of external members, yes, without collateral, without government securities. Okay, repo is equal to HDF except collateral. The clause on collateral, it's unsecured loan. It's one type of unsecured loan for banks, right? What is the term of external members of MPC? 4 years. Very good, very good, very good. What is the percentage of votes is required in the MPC to change the policy rate? Simple majority, two-third majority, 3/4 majority, unanimous decision. MPC रेट हाइक करेगा, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब 6 लोग में से 4 लोग बोलेंगे तब होगा। 2/3 मेजोरिटी मतलब 3 में से 2 लोग बोलेंगे होगा, या फिर 6 में से 4 बोलेंगे तब होगा। 3/4 मेजोरिटी यानी कि 4 में से कम 3 बोलेंगे तो होगा। और यूनानिमस डिसीजन, सब मिलके एक ही बात पर राजी होंगे तब जाके होगा। बताइए। नो, नॉट 2/3 मेजोरिटी, आई एम कंफ्यूज्ड है। 2/3 मेजोरिटी 6 लोगों के कंडीशन में सेम है, बट द रियल टर्म इज सिंपल मेजोरिटी। कभी कभी मॉनिटर, कभी कभी 6 लोगों की जगह 5 लोग भी आ जाते हैं। एक डेप्यूटी गवर्नर नहीं रहेगा किसी दिन, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा अचानक से, ठीक है, तब कम हो सकता है, कम बेसी हो सकता है। तो ऐसे में सिंपल मेजोरिटी, याद रखिए, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है। व्हाट हैपेंस? अच्छा, जब टाई हो जाएगा वोट तो क्या होगा, ये हम नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में पूरा होगा। इसका एमसीक्यू, इसके बारे में बहुत कुछ चीजें हैं, वो पूरे होगा। जब टाई हो जाएगा, 3 बोलेगा रेट हाइक करिए, 3 बोलेगा रेट नहीं हाइक करिए, तो क्या होगा? ये एमसीक्यू आपको मॉनेटरी पॉलिसी के पीडीएफ में मिल जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द मॉनेटरी मनी सप्लाई इफ द एसएलआर इज इंक्रीज्ड? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन द सेम, बिकम्स वोलेटाइल। क्या होगा? Veto power of RBI governor. Very good. You all are well ahead. Okay. Okay. Here decrease होगा। ठीक है, decreases, decreases. Very good. Which amendment to the RBI Act led to the formation of MPC? कौन से अमेंडमेंट में एमपीसी को इंक्लूड किया गया आरबीआई एक्ट में? 32nd अमेंडमेंट, दैट इज 32nd अमेंडमेंट। ओके, 32nd अमेंडमेंट। Which tool does the RBI use to regulate long-term interest rates? Long-term interest rate is used by open market operations. Open market operations, OMO. Okay.
आरबीआई एलएएफ प्राइमरी डील्स विथ एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किस में काम करता है? एलएएफ और एमएसएफ, दो चीजों के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्योंकि एलएएफ के अंदर आएगा रेपो एटसेट्रा, रेपो एटसेट्रा। रेपो का ज्यादा इस्तेमाल किस में होता है? याद रखिए, रेपो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ओवरनाइट लेंडिंग के लिए होता है। ओवरनाइट लेंडिंग बैंक्स करते हैं अपने सीआरआर को, जो सीआरआर का शॉर्टफॉल है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। Which committee was constituted to review the working of monetary system in 1985? बहुत क्विक जाते हैं, ठीक है। बहुत लेट हो चुका है, चक्रवर्ती कमिटी, ठीक है। Directly controlled by RBI, directly controlled by RBI, not directly controlled by RBI, interest rate on savings account, rest all controlled.